Hello everyone. Today we will discuss next unit related to income determination. It is an important unit, 12 marks in CBSE exam. Let's start. Related concepts: aggregate demand, aggregate supply, investment, saving also. Let's start from the aggregate demand. Aggregate demand means expenditure on final goods and service by all the household in an economy. In a simple language, we can say that market value of all total goods and service demanded in an economy during a given period is called a aggregate demand. In other way, we can say that all final goods and service demanded by all the household in an economy is called a aggregate demand. Lot of definitions you can check. Here aggregate demand is equal to C plus I. C mean consumption, I mean investment. Discuss with the help of schedule. When Y is 0, income is 0, consumption is 50. When income is 0 and consumption is 50 is known as a autonomous consumption, CA. CA means when income is 0, consumption is a minimum, is known as a autonomous consumption. As well as income increase, consumption also increase, but consumption is increase less than income. देखो यहाँ पर इनकम का इंक्रीज 0, 100, 200, 300, 400, 500, 16, 600, 100 गैप से राइज हो रही है. कंजम्पशन राइज 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350. इसमें कंजम्पशन आल्सो राइज, बट कंजम्पशन इंक्रीज लेस देन इनकम. हियर इन्वेस्टमेंट मीन्स autonomous investment. When income is 0, investment is minimum, it is known as a autonomous investment. Here autonomous investment is 50-50-50 because it is done by government to increase aggregate demand in an economy. When we add C plus I, we get aggregate demand. Let's take with the help of a curve. Here y-axis shows aggregate demand and aggregate supply, and x-axis shows the national income. Aggregate supply started from origin 45 angles, and aggregate demand start from y-axis because aggregate demand is a sum of consumption plus investment. Consumption is 50 minimum, so it start from y-axis. As well as income increase, aggregate demand also increase, but income increase greater than consumption. इनकम बढ़ रही है तो एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ रही है, लेकिन एग्रीगेट डिमांड की बढ़ने की स्पीड एग्रीगेट सप्लाई से कम है. इस कारण से जो पहले स्टार्टिंग में एग्रीगेट डिमांड इनकम से ज़्यादा है, यानी एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा है. लेकिन जहाँ पर दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहाँ पर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल है. उसके बाद एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा है, एग्रीगेट डिमांड क्या है, कम है. क्रिएट गैप ड्यू टू इंक्रीज इनकम मोर देन एग्रीगेट डिमांड. लेट्स स्टार्ट. कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड. कंपोनेंट्स एग्रीगेट डिमांड मीन्स कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो एग्रीगेट डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं. बेसिकली इसके दो फंक्शन हैं, C प्लस I. Now discuss closed and open economy. Closed economy means aggregate demand is equal to C plus I plus G. C consumption, I investment, G for government. तीनों के ही जो एक्सपेंडिचर हैं वो देश के अंदर ही होते हैं, तो वो क्या है, क्लोज इकोनॉमी का टाइप है. लेकिन आजकल इकोनॉमी कोई भी क्लोज नहीं है, ओपन इकोनॉमी है. तो ओपन इकोनॉमी एग्रीगेट डिमांड is equal to C plus I plus G plus X export minus import. Now discuss one by one. Take first
हाउस होल्ड कंजम्पशन डिमांड, यानी हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये भी कह सकते हैं। इट मीन्स एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विस बाय ऑल दी हाउस होल्ड in a country during a period of time is called a household consumption expenditure. It's depend on personal disposable income. More personal disposable income, more expenditure. Less personal expenditure income, less expenditure. Means income ज़्यादा होगी तो ज़्यादा कंजम्पशन होगा, इनकम कम होगी तो कम एक्सपेंडिचर होगा। डिमांड कौन करता है? प्राइवेट कंजम्पशन करते हैं। तो प्राइवेट पर्सन कौन है? हम हैं, हाउस होल्ड है। किसकी डिमांड करते हैं? फूड की, क्लॉथ की, मशीनरी की, गैजेट्स की। तो ये क्या है? प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट इज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, यानी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट मीन्स प्राइवेट एक्सपेंडिचर ऑन फिक्स एसेट्स लाइक मशीन, बिल्डिंग, इक्विपमेंट्स एक्सेट्रा। ये प्लान्ड होती है। इट इज़ डिपेंड ऑन रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर मार्केट के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा तो डिमांड्स क्या है? कम होगी, इन्वेस्टमेंट कम होगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो लोग ज़्यादा क्या डिमांड करेंगे लोन की, और इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा करेंगे। इसलिए लेस रेट ऑफ इंटरेस्ट मोर इन्वेस्टमेंट, मोर रेट ऑफ इंटरेस्ट लेस इन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मीन्स expenditure by government on consumption and investment purpose. Like India faced the problem of corona disease. Lot of expenditure by the government on food items to provide minimum food to poor sections. And government spend a lot of money on dams, bridges, hospitals, education. That is a investment expenditure. तो गवर्नमेंट टू दो टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। नेट एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट मीन एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। व्हेन वी आर एक्सपोर्ट टू अदर कंट्री वी रिसीव फॉरेन करेंसी, व्हेन वी आर इम्पोर्ट फ्रॉम अदर कंट्री वी सेंड मनी टू अदर कंट्री। डिफरेंस ऑफ इट इज नोन एज ए नेट एक्सपोर्ट, दैट इज कॉल्ड ए components of aggregate demand, which is very very important to draw a schedule and a curve of aggregate demand. Then is aggregate supply. Aggregate supply means total flow of goods and service produced in an economy is called a aggregate supply. We can check with the help of schedule. Same, y is 0, consumption is minimum is known as a autonomous consumption. यहाँ एक फॉर्मूला दिया हुआ है, C कंजम्पशन इज इक्वल टू सी ए प्लस बी वाई। सी ए मतलब ऑटोनॉमिक कंजम्पशन, जो किसी चीज़ से इन्फ्लुएंस नहीं होती है, उसे मिनिमम कंजम्पशन करनी ही पड़ेगी। इसलिए व्हेन वाई इज 0 इज एंड कंजम्पशन इज मिनिमम इज नोन एज ए ऑटोनॉमिक कंजम्पशन। उसके बाद क्या है? वो MPC पर डिपेंड करती है, वो इनकम के बढ़ने पर डिपेंड करती है कि हमने कितना स्पेंड करना है। इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन भी बढ़ेगी, लेकिन कंजम्पशन बढ़ने की जो रेट है वो इनकम से कम होती है। यहाँ पर क्या है? YCS, इनकम 0 है, कंजम्पशन क्या है? 50 है, तो 0 - 50 इज इक्वल टू -50, तो सेविंग क्या होगी? नेगेटिव होगी। तो जब कंजम्पशन क्या है इनकम से ज़्यादा होगी तो सेविंग क्या होगी? नेगेटिव होगी, क्योंकि हमें उधार लेकर अपने खर्चों को बियर करना पड़ता है। एंड देन इनकम इंक्रीज, कंजम्पशन आल्सो इंक्रीज एंड सेविंग आल्सो इंक्रीज, बट रेट ऑफ सेविंग इज लेस देन इनकम। इनकम बढ़ने पर सेविंग भी बढ़ेगी, लेकिन सेविंग बढ़ने की रेट इनकम से कम होगी। ठीक है जी। तो इन दोनों को ऐड कर दो, क्या बन जाएगा? एग्रीगेट सप्लाई बन जाएगा। यहाँ पर एक कर्व दिया गया है। Aggregate supply is starting from origin and C start from y-axis, there are 2 पॉइंट दिए हुए हैं। CA मतलब ऑटोनॉमिक कंजम्पशन, इनकम 0 है तो मिनिमम कंजम्पशन 50 है। जब मिनिमम कंजम्पशन 50 है तो वहाँ पर सेविंग क्या है? नेगेटिव है, वो -50 हो जाएगी। एक पॉइंट है जहाँ पर y इज इक्वल टू C है, जहाँ पर C इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई है, वहाँ पर क्या सेविंग क्या है? 0 है।
उसके बाद एग्रीगेट सप्लाई ऊपर चली जाती है, कंजम्पशन उसके नीचे रह जाती है, मीन्स दोनों के बीच गैप क्रिएट होता है। वो गैप क्या है? सेविंग का गैप है, क्योंकि इनकम इंक्रीज, सेविंग आल्सो इंक्रीज, बट सेविंग इंक्रीज लेस देन इनकम। थैंक यू, हैव a nice day. If you have any problem, you can directly approach to me.